السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ میں ہوں آصفہ محفوظ اور میں ہوں عامر ہاشمی۔ پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ پاکستان تمام ممالک خصوصاً ہمسایہ ملکوں کے ساتھ دوستانہ تعلقات کا خواہاں ہے۔ بحری فوج کے سربراہ نے منگلہ میں اسٹرائک کور کی مشترکہ تربیتی مشق کا معائنہ کیا اور ان کی آپریشنل صلاحیتوں اور پیشہ ورانہ مہارتوں کی تعریف کی۔ وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ نگراں حکومت ملک میں آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کے انعقاد کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستان 1967 کی سرحدوں کی بنیاد پر فلسطین کے تنازع کے 2 ریاستی حل کے لیے پرعزم ہے۔ پنجاب کے نگراں وزیر اعلیٰ نے آج گجرانوالہ میں نئے تعمیر کیے گئے جدید چلڈرن اسپتال کا افتتاح کیا۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج بھی تیزی کا رجحان برقرار رہا اور KSE 100 انڈیکس 293 پوائنٹس کے اضافے کے ساتھ 57,371 پر بند ہوا۔ افغان باشندوں سمیت غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کی ان کے ملکوں کو واپسی کا سلسلہ جاری ہے۔ ڈیرہ اسماعیل اور جنوبی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز نے خفیہ اطلاع کی بنیاد پر کارروائی کرتے ہوئے 3 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ شمالی غزہ کی پٹی پر اسرائیلی فوج کی بمباری سے 80 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے حریت رہنماؤں کی جیلوں میں غیر قانونی نظر بندی کو مختلف ہیلوں بہانوں سے طول دینے پر بھارتی حکومت پر تنقید کی ہے۔ ٹیلی ویژن کا عالمی دن آج منایا گیا۔ نامور شاعر اطہر نفیس کی 43ویں برسی آج منائی گئی۔ اور اب خبروں کی تفصیل کے ساتھ پہلے عامر ہاشمی۔ شکریہ آصفہ محفوظ۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا ہے کہ پاکستان ایک امن پسند ملک ہے اور تمام ملکوں خصوصاً ہمسایہ ممالک کے ساتھ دوستانہ روابط برقرار رکھنے کا خواہاں ہے۔ تفصیلات ہمارے پشاور کے نمائندے فلک نیاز کی اس رپورٹ میں۔ آج رسالپور کے PAF اکیڈمی اصغر خان میں پاسنگ آؤٹ پریڈ کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا کہ پاکستان ایک امن پسند ملک ہے اور تمام ممالک خصوصاً ہمسایہ ممالک کے ساتھ دوستانہ تعلقات کا خواہاں ہے۔ تاہم انہوں نے کہا کہ ہماری امن کی خواہش کو کمزوری نہ سمجھا جائے۔ Pakistan is a peace-loving nation and wishes to maintain friendly relations with all countries, especially our neighbors. However, our desire for peace must not be understood as weakness. وزیر اعظم نے کہا کہ خطے میں مسئلہ کشمیر کے حل کے بغیر امن کا قیام ناممکن ہے۔ اس موقع پر انہوں نے بھارت کے زیر انتظام مقبوضہ کشمیر میں جاری انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی شدید الفاظ میں مذمت کی۔ That there can be no peace without a just settlement of the Kashmir issue. We condemn the grave human rights violation in Indian illegally occupied Jammu and Kashmir. نگران وزیر اعظم نے کہا کہ خلا، سائبر سیکیورٹی، نینو ٹیکنالوجی اور مصنوعی ذہانت کے تیزی سے تبدیل ہونے والے رجحانات سے سیکیورٹی کی صورتحال میں کافی تبدیلی آئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان ہتھیاروں کے دوڑ میں شامل نہیں ہوگا، تاہم پاکستان کسی بھی جارحیت کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنی صلاحیتوں میں اضافہ کرتا رہے گا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان ایئر فورس کو جدید خطوط پر استوار کیا گیا ہے۔ انوار الحق کاکڑ نے کورس مکمل کرنے پر تمام کیڈٹس کو مبارکباد پیش کی۔ انوار الحق کاکڑ نے مختلف کورسز میں بہترین پوزیشن حاصل کرنے والے کیڈٹس میں ٹرافیاں بھی تقسیم کی۔ بحری فوج کے سربراہ سید عاصم منیر نے منگلہ میں اسٹرائک کور کی کور سطح کی مشترکہ تربیتی مشق کا دورہ کیا۔ اس مشق کا مقصد حملے کے تصورات کو مستحکم کرنا ہے۔ انہوں نے جدید ترین VT-4 ٹینکوں سے لیس آرمرڈ فارمیشن کی قیادت میں شاندار پیچیدہ مشقوں کا متاثر کن مظاہرہ دیکھا۔ آرمی چیف مشق میں حصہ لینے والے جوانوں سے ملے اور ان کی آپریشنل مستعدی اور پیشہ ورانہ کارکردگی کو سراہا۔ انہوں نے جنگی تیاریوں کی اہمیت اور مختلف خطرات کے حوالے سے حکمت عملی کو اجاگر کیا۔ انہوں نے اس بات کا اعادہ کیا کہ امن کے وقت میں صرف حقیقت پسندانہ مشن پر مبنی تربیت ہی میدان جنگ میں بہترین کارکردگی کی ضمانت ہو سکتی ہے۔ اس سے قبل آمد پر کور کمانڈر منگلہ نے بحری فوج کے سربراہ کا استقبال کیا۔
इत्तलात और नशरियात और पार्लिमानी उमूर के निगरां वज़ीर मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा है कि निगरां हुकूमत मुल्क में आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात के इनेकाद के लिए पुरज़्म है। आज इस्लामाबाद में स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा, शफाफ और काबिल एतमाद इंतखाबात को यकीनी बनाने के लिए इलेक्शन कमीशन को तमाम ज़रूरी वसाइल और ताउन फ़राहम किया जाएगा। स्पीकर ने मुल्क में आज़ादाना, मुनसिफाना और शफाफ इंतखाबात के इनेकाद की हुकूमती अज़्म का खैर मकदम किया। दोनों रहनुमाओं ने इंतखाबी अमल को आज़ादाना, मुनसिफाना और शफाफ बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया। उधर वज़ीर इत्तलात ने इस्लामाबाद में सेक्रेटरी इत्तलात शहीरा शाहिद और साबिक सेक्रेटरी इत्तलात ज़हूर अहमद से गुफ्तगू करते हुए कहा, हुकूमत एक मुतहरिक, मुतनव्वे और ज़िम्मेदार ज़राए अबलाग के फ़रोग़ के लिए पुरज़्म है। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि टेक्नोलॉजी की तेज़ तरक्की ने ज़राए अबलाग के तरीक़ाकार को भी तब्दील कर दिया है। उन्होंने कहा कि ज़राए अबलाग की आज़ादी और सहाफ़ियों के हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत का पुख्ता आज़्म है। मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा कि हमें दुनिया के सामने पाकिस्तान का मुस्बत तशख़्ख़ुस, अपने शानदार सकाफ़ती विरसे और समाजी और मुआशी कामयाबियों को उजागर करना चाहिए। सेनेट को आज बताया गया कि निगरां हुकूमत तालीम के शोबे में मसाइल के हल के लिए तमाम मुमकिन कोशिशें कर रही है। वक्फा सवालात के दौरान वज़ीर तालीम मदद अली सुन्नी ने इस अमर पर अफसोस का इजहार किया कि तालीम के शोबे को गुज़श्ता हुकूमतों की जानिब से नज़रअंदाज किया गया, जिसकी वजह से 2 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जा रहे। उन्होंने कहा कि हम सरकारी स्कूलों में बच्चों के इंदराज और तालीम के मेयार को बेहतर बनाने के लिए भरपूर कोशिशें कर रहे हैं। एक सवाल पर पार्लिमानी उमूर के वज़ीर मुर्तज़ा सोलंकी ने ऐवान को बताया कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के नए सदर के इंतखाब के लिए एक कमेटी कायम कर दी गई है। उन्होंने ऐवान में 7वें NFC अवार्ड पर अमल दरामद की पहले शशमाही रिपोर्ट भी पेश की। एक सवाल का जवाब देते हुए पार्लिमानी उमूर के वज़ीर मुर्तज़ा सोलंकी ने ऐवान को बताया कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के नए सदर के इंतखाब के लिए कमेटी तश्कील दी गई है। उन्होंने 7वें NFC अवार्ड पर अमल दरामद के बारे में पहले शशमाही जायज़ा रिपोर्ट भी ऐवान में पेश की। एक सवाल का जवाब देते हुए वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी ने ऐवान को बताया कि तकरीबन 25 लाख पाकिस्तानी सऊदी अरब में काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि उनकी शिकायत के इज़ाले के लिए रियाज में पाकिस्तानी सफारत खाने और जद्दा में कौंसल खाने में हेल्पलाइन कायम कर दी गई है, जो दिन रात काम कर रही है। रज़ा रब्बानी की जानिब से नुक्ते एतराज़ का जवाब देते हुए वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तान 1967 की सरहदों की बुनियाद पर फ़लस्तीन के तनाज़े के 2 रियासती हल के लिए पुरज़्म है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ अक़वाम मुत्तहिदा और इस्लामी ताउन तंजीम की करारदादों के मुताबिक है। ऐवान का इजलास अब जुमे की सुबह 10:30 बजे दोबारा होगा। ये खबरें आप रेडियो पाकिस्तान से सुन रहे हैं। रेडियो पाकिस्तान की ऑफिशियल मोबाइल ऐप, जहां आपको मिलेगी रेडियो पाकिस्तान के तमाम मीडियम वेव्स और FM चैनल्स की लाइव स्ट्रीमिंग, ताज़ा तरीन खबरें, रेडियो पाकिस्तान की दिलचस्प पॉडकास्ट सर्विस और बहुत कुछ। तो अभी विजिट करें radio.gov.pk/apps और अपने मोबाइल फोन्स पर रेडियो पाकिस्तान की ऑफिशियल मोबाइल ऐप डाउनलोड करें। रेडियो पाकिस्तान, कौम की आवाज़। नेदरलैंड्स की सफ़ीर हनी डीवराइस ने आज इस्लामाबाद में निगरान वज़ीर ख़ज़ाना डॉक्टर शमशाद अख्तर से मुलाकात की। मुलाकात में दोनों मुल्कों के दरमियान 2 तरफ़ा माशी ताल्लुकात के मुख्तलिफ पहलुओं का जायज़ा लिया गया। मुलाकात में सैलाब के बाद बहाली के अमल और पाकिस्तान पर मौसमियाती तब्दीली के असरात से मुतालिक उमूर ज़ेर बहस आए। इस मौके पर इज़हार ख़याल करते हुए डॉक्टर शमशाद अख्तर ने मुख्तलिफ शोबों में खुसूसन टैक्स का दायरा कार बढ़ाने के हवाले से हुकूमत की जानिब से की गई इस्लाहात को उजागर किया। उन्होंने नेदरलैंड्स के साथ सिफारती ताल्लुकात को मजबूत बनाने और दोनों मुल्कों के फ़ायदे के लिए मुश्तरका कोशिशें करने के लिए पाकिस्तान के पुख्ता आज़्म का इआदा किया। नेदरलैंड्स की सफ़ीर ने पाकिस्तान के हवाले से बैनुल-अक़वामी मालियाती फ़ंड के आर्ज़ी इंतज़ाम के पहले जायज़े के स्टाफ की सतह पर मुआहदे और पाकिस्तान में मुआशी सूरत हाल की मजमूई बेहतरी पर डॉक्टर शमशाद अख्तर को मुबारकबाद दी। उन्होंने मुआशी बहाली में मुस्बत रफ्तार का एतराफ़ करते हुए ज़राअत, खिदमात और सनतों जैसे शोबों में बेहतरी का जिक्र किया। उन्होंने पाकिस्तान में मज़ीद सरमायाकारी लाने के लिए नेदरलैंड्स का अज़्म ज़ाहिर किया।
पाकिस्तान ने चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी मंसूबे के दूसरे मरहले पर अमल दरामद तेज करने का आज़म ज़ाहिर किया है। इस अज़म का इजहार आज इस्लामाबाद में निगरां वज़ीर मनसूबाबंदी मोहम्मद समी सईद और पाकिस्तान में चीन के सफ़ी जियांग जियाडोंग के दरमियान मुलाकात में किया गया। मोहम्मद समी सईद ने ML1 और कराची सर्कुलर रेलवे मंसूबों की अहमियत को उजागर किया। गवादर की अहमियत का जिक्र करते हुए दोनों रहनुमाओं ने आला मेयारी वोकेशनल ट्रेनिंग इदारे, प्योरिफिकेशन प्लांट और जदीद तरीन हस्पताल के ज़रिए शहर में समाजी और माशी कलीदी इक़दाम को उजागर किया। सफ़ी ने CPEC के मुतालिक मंसूबों पर अमल दरामद और पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। पंजाब के निगरां वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने आज गुजरावाला में 100 बिस्तरों पर मुश्तमिल बच्चों के नए कायम शुदा जदीद तरीन अस्पताल का इफ्तिताह किया। उन्होंने इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि गुजरावाला में बच्चों का अस्पताल कायम होने से DHQ अस्पताल पर रश कम हो जाएगा। उन्होंने सिर्फ 6 महीने की मुख्तसर मुद्दत में बच्चों के लिए कामयाबी से बेहतरीन अस्पताल कायम करने पर इंतज़ामिया की तारीफ की। इससे पहले एक ब्रीफिंग में वज़ीर आला को बताया गया कि अस्पताल 10 करोड़ रुपए के खर्च से कायम किया गया है। पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल नवीद अशरफ ने आज कराची में सिंध के निगरां वज़ीर आला मकबूल बाकिर से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान बहरिया के सरबराह ने वज़ीर आला को बताया कि पाक बहरिया माई कोलाची के करीब एक ट्रीटमेंट प्लांट कायम करना चाहती है जो निकासी निज़ाम का एक बड़ा मंसूबा है। उन्होंने मज़ीद बताया कि कराची में चीन के ताउन से साइनो-पाक रिफाइनरी भी कायम की जा रही है। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए निगरां वज़ीर आला ने बहरिया के सरबराह को तमाम तरक्याती स्कीमों में मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। रोयत हिलाल कमेटी के चेयरमैन मौलाना सैयद मोहम्मद अब्दुल खबीर आज़ाद ने कहा है कि दानिशवरों को मजहबी हम आहंगी, बर्दाश्त और तशद्दुद से पाक मुआशरे के फ़रोग़ के लिए अपना किरदार अदा करना चाहिए। मज़ीद तफसील हमारे मुल्तान के नुमाइंदे गुलाम अब्बास से। आज मुल्तान में मजलिस उलमा पाकिस्तान के ज़ेर-ए-तमाम पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मौलाना सैयद अब्दुल खबीर आज़ाद ने कहा कि पैगाम पाकिस्तान का अज़ीम व शान बयानिया है जिसने दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खात्मे में अपना अहम किरदार अदा किया है। उन्होंने कहा कि इस्लाम अमन का मज़हब है जो हमें अमन, भाईचारे, मोहब्बत, इत्तेहाद, मजहबी हम आहंगी और एहतराम इंसानियत का दर्ज देता है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल बंद किया जाए ताकि किसी की दिल आज़ारी ना हो। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने कहा कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात में तमाम उलमा कराम ने पाकिस्तान में दहशतगर्दी के खात्मे के लिए अपनी मुकम्मल हिमायत का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि आज पूरी उम्मत मुसलमान फ़लस्तीन और गजा के मज़लूम मुसलमानों के साथ खड़ी है। अक़वाम मुत्तहिदा के तिजारती इदारे और समंदरी माहीगीरी की कौमी सर्विस ने समंदरी ममालिया तहफ़्फ़ुज़ एक्ट से इस्तिस्ना की मुद्दत में 2 साल की तौसीअ से पाकिस्तान को आलमी सतह पर बावक़ार मकाम हासिल हो गया है। समंदरी अमूर की वजारत के मुताबिक इस तौसीअ के नतीजे में 130 में से चंद मुंतखब ममालिक में पाकिस्तान को इम्तियाजी हैसियत हासिल हो गई है। इसी नुमायाँ पेशरफ से अमरीका को मछली और मछली की मसनूआत बरामद करने के लिए तिजारती बुनियादों पर माहीगीरी के लिए दूसरों के मवाज़ने की कतई मुद्दत में 31 दिसंबर 2025 तक तौसीअ हो गई है। पाकिस्तान की ये कामयाबी मुल्क की माहीगीरी की सरगर्मियों को आला तरीन बैनुल-अक़वामी इसी मयार से माहंग करने के लिए पाकिस्तान के अज़्म का सबूत है। पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगानों समेत तमाम गैर मुल्की बाशिंदों की उनके मुल्कों को वापसी का सिलसिला जारी है। गैर कानूनी तौर पर मुकीम हज़ारों की तादाद में अफगान बाशिंदे पाकिस्तान की मेहमान नवाजी का शुक्रिया अदा करते हुए चमन और तुरखम की सरहदी गुज़रगाहों से रोज़ाना अपने मुल्क वापस जा रहे हैं। अफगान बाशिंदों की अपने वतन बावकार वापसी के लिए दीगर इक़दाम के अलावा मुल्क के मुख्तलिफ अज़ला में उनके आर्जी क़याम के लिए तमाम सहूलतों से आरास्ता ट्रांजिट कैंप कायम किए गए हैं। गुज़श्ता रोज़ 2292 से ज़ायद गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदे 231 गाड़ियों में अपने मुल्क वापस चले गए। अब तक 2 लाख से ज़ायद अफगान बाशिंदे अपने वतन वापस जा चुके हैं। डेरा इस्माइल खान के इलाके कोलाची में सिक्योरिटी फोर्सेस की खुफिया इत्तलात की बुनियाद पर कार्रवाई में 2 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए हैं। ज़िला जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके कोट आज़म में एक कार्रवाई में एक दहशतगर्द मारा गया। मारे गए तीनों दहशतगर्दों के कब्जे से गोला बारूद और असलहा भी बरामद कर लिया गया जो सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मासूम शहरियों के खिलाफ मुतअद्दिद कार्रवाइयों में मुलव्विस थे।
ایک اور حادثے میں بم پھٹنے سے ایک سیکورٹی اہلکار نے جام شہادت نوش کیا، تاہم علاقے کو دہشت گردوں سے پاک کرنے کے لیے آپریشن جاری ہے۔ ایک بیان میں آئی ایس پی آر نے دہشت گردی کے لعنت کے خاتمے کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ پاکستان نے اس سیاسی اعلامیے پر عمل درآمد کرنے کو کہا ہے جو گزشتہ ستمبر میں پائیدار ترقی کے اہداف کی سربراہ کانفرنس میں منظور کیا گیا تھا، جس کے تحت عالمی سربراہوں نے غربت اور بھوک ختم کرنے اور عدم مساوات کا مقابلہ کرنے کے اپنے عزم کا اعادہ کیا تھا۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم نے مشترکہ ترقی کے ذریعے پائیدار امن کے فروغ پر سلامتی کونسل کی بحث میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ ترقی کے وعدے کی سلامتی کونسل کو توثیق کرنی چاہیے تاکہ انہیں لازمی ذمہ داری کی شکل دی جا سکے۔ انہوں نے اقوام متحدہ کے قیام امن کمیشن کی ان کوششوں کی حمایت کی جن کا مقصد ترقی کو فروغ دے کر تصادم کی صورتحال کو حل کرنے پر توجہ دینا ہے۔ منیر اکرم نے کہا کہ اگر لوگوں کو غیر ملکی قابض افواج محکوم بنا کر رکھے اور انہیں طاقت کے زور پر حق خود ارادیت سے محروم رکھا جا رہا ہو، جیسا کہ فلسطین اور مقبوضہ جموں کشمیر میں ہو رہا ہے، تو ترقی کے ذریعے کوئی امن قائم نہیں ہو سکتا۔ شمالی غزہ میں اسرائیل کی مسلسل بمباری کے نتیجے میں عورتوں اور بچوں سمیت کم سے کم 80 فلسطینی شہید اور بہت سے زخمی ہو گئے ہیں۔ میڈیکل ذرائع کے مطابق شمالی غزہ میں اسرائیلی فضائی حملوں میں شہری آبادی کو نشانہ بنایا گیا۔ جنوبی لبنان کے قصبے طائر حرفہ میں صحافیوں کے ایک گروپ پر اسرائیلی بمباری کے نتیجے میں 3 لبنانی شہری شہید ہو گئے، جن میں 2 صحافی شامل ہیں۔ ادھر اسرائیلی افواج نے مقبوضہ مغربی کنارے کے کئی علاقوں میں کارروائیوں کے دوران 45 فلسطینیوں کو حراست میں لے لیا۔ 7 اکتوبر کو جنگ شروع ہونے کے بعد سے مقبوضہ مغربی کنارے کے علاقے میں 3000 سے زیادہ فلسطینیوں کو گرفتار کیا گیا، جن میں درجنوں بچے بھی شامل ہیں۔ روس نے فلسطینی ریاست کے قیام کے لیے مذاکرات فوری طور پر شروع کرنے کو کہا ہے۔ یہ بات روس کے وزیر خارجہ سرگئی لیوروف عرب لیگ اور اسلامی تعاون تنظیم کے رکن ممالک کے وزیر خارجہ سے ماسکو میں ایک ملاقات میں کہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ قیام امن کے عمل کی عرب لیگ اور اسلامی کانفرنس تنظیم کے تمام رکن نے حمایت کی ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے جیلوں میں حریت رہنماؤں اور کارکنوں کی غیر قانونی نظر بندی کو مختلف ہیلے بہانوں سے طول دینے پر بھارت کی ہندوتوا حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ حریت کانفرنس کے ترجمان نے سری نگر میں جاری ایک بیان میں کہا کہ کشمیری سیاسی قیدیوں کے ساتھ جیلوں میں جس طرح کا سلوک کیا جاتا ہے اس کی انسانی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ انہوں نے کہا کہ کئی عمر رسیدہ رہنما اور کارکن متعدد عارضوں میں مبتلا ہیں، لیکن انہیں علاج معالجے کی سہولت فراہم نہیں کی جا رہی۔ اسلام آباد میں انسانی حقوق کی متعدد بین الاقوامی تنظیموں نے انسانی حقوق کے کشمیری کارکن خرم پرویز اور صحافی عرفان معراج کی سیاسی بنیادوں پر لگائے گئے الزامات کے تحت مسلسل غیر قانونی نظر بندی کی مذمت کی ہے۔ انٹرنیشنل فیڈریشن فار ہیومن رائٹس اور ورلڈ آرگنائزیشن اگینسٹ ٹارچر سمیت انسانی حقوق کی تنظیموں نے ایک مشترکہ بیان میں کہا ہے کہ خرم پرویز گزشتہ 2 سال سے بھارتی دارالحکومت نئی دہلی کی روہنی جیل میں غیر قانونی طور پر نظر بند ہے۔ انسانی حقوق کی تنظیموں نے بھارتی حکام پر زور دیا کہ وہ خرم پرویز اور عرفان معراج کو فوری اور غیر مشروط طور پر رہا کریں اور انسانی حقوق کے تمام کشمیری کارکنوں سول سوسائٹی کی تنظیموں کو ہراساں کرنے کا ہر قسم کا سلسلہ بند کیا جائے۔ میکسیکو کے شہر کورنواکا میں مسلح تصادم کے نتیجے میں کم از کم 9 افراد ہلاک اور 4 زخمی ہو گئے ہیں۔ کانگو کے دارالحکومت برازیل میں ایک بھگدڑ کے نتیجے میں کم سے کم 37 افراد ہلاک اور کئی زخمی ہو گئے۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ۔ اب پیش ہے کھیلوں کی خبریں۔ پاکستان کے سابق کھلاڑیوں عمر گل اور سعید اجمل کو قومی کرکٹ ٹیم کا فاسٹ بولنگ اور سپن بولنگ کوچ مقرر کر دیا گیا ہے۔ وہ ابتدائی طور پر آسٹریلیا کے خلاف 14 دسمبر سے اگلے سال 7 جنوری تک کھیلی جانے والی ٹیسٹ سیریز اور نیوزی لینڈ کے خلاف اگلے سال 12 جنوری سے شروع ہونے والی T20 سیریز کے دوران اپنی ذمہ داریاں سر انجام دیں گے۔
14वीं नेशनल बैंक T20 ब्लाइंड क्रिकेट ट्रॉफी कल से फैसलाबाद में शुरू होगी। पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल ने कहा है कि 8 बेहतरीन टीमें मुकाबले में हिस्सा लेंगी। टीमों को 2 ग्रुपों में तकसीम किया गया है। एबटाबाद, अटक, फैसलाबाद और शेखुपुरा की टीमों को ग्रुप ए में, जबकि कराची, कोयटा, सरगोदा और गिलगित बल्तिस्तान की टीमें ग्रुप बी में शामिल हैं। आज इस्लामाबाद में फीफा आलमी कप क्वालिफायर्स ग्रुप जी के मैच में ताजिकिस्तान ने पाकिस्तान को 1 के मुकाबले में 6 गोल से हरा दिया। ग्रुप जी पाकिस्तान, सऊदी अरब, ताजिकिस्तान और उर्दन की टीमों पर मुश्तमिल है। पाकिस्तान अपना अगला मैच आइंदा साल 21 मार्च को उर्दन के खिलाफ खेलेगा। वजीराबाद में मोहम्मद रशीद फुटबॉल ग्राउंड में खेले गए फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में पिशावर ने सोहादरा को हराकर टाइटल का दिफा किया। ये चैंपियनशिप गैर सरकारी तंजीम मुस्लिम हैंड्स ने नौजवानों में फुटबॉल के खेल को फ़रोग़ देने के लिए मुनक़्क़िद की। चैंपियनशिप में कुल 12 टीमों ने हिस्सा लिया, जिनमें पिशावर, इस्लामाबाद, रावलाकोट, कोटली बाग, गुजर खान, वज़ीराबाद और सोहदरा शामिल थीं। पिशावर ने सोहदरा को 1-0 से हराकर चैंपियनशिप जीत ली। इससे कबल सेमीफाइनल में पिशावर ने वज़ीराबाद फाल्कन और जबकि सोहदरा ने रावलाकोट ईगल्स को शिकस्त दी। कतर में होने वाले एशियन कप 2023 के टिकटों की फ़रोख्त से होने वाली आमदनी फ़लस्तीनी इमदादी सरगर्मियों के लिए अतिया की जाएगी। फुटबॉल टूर्नामेंट की मकामी कमेटी के चेयरमैन हमाद बिन खलीफा सानी ने कहा है कि इस कदम से सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वालों को फ़ायदा पहुंचेगा और फुटबॉल मुश्किल हालात में लोगों के लिए एक मुआविन तरीक़ाकार के तौर पर अपना किरदार अदा करेगा। खेलों की खबरें आपने सुनी और अब हम बुलेटिन में शामिल करेंगे तिजारती खबरें। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज कारोबारी हफ्ते के दूसरे दिन भी तेजी का रुझान देखा गया और KSE 100 इंडेक्स 293 से ज़ायद पॉइंट्स के इजाफे के साथ 57,731 पॉइंट्स पर बंद हुआ। मजमूई तिजारती हजम 1012.258 मिलियन से ज़ायद हिस्से रिकॉर्ड किया गया, जबकि कल 718.285 मिलियन से ज़ायद हिस्से का लेन देन हुआ था। आज वर्ल्ड कॉल कंपनी के सबसे ज़्यादा 254.276 मिलियन से ज़ायद हिस्से का कारोबार हुआ। नेशनल बैंक के ऐलान के मुताबिक रुपए और दीगर गैर मुल्की करेंसियों के दरमियान शरह तबादला ये रही। अमरीकी डॉलर कीमत खरीद 285 रुपये 29 पैसे और कीमत फ़रोख्त 285 रुपये 79 पैसे। पाउंड स्टर्लिंग 257 रुपये 52 पैसे और 358 रुपये 17 पैसे। यूरो 312 रुपये 68 पैसे और 313 रुपये 28 पैसे। सऊदी रियाल 76 रुपये 5 पैसे और 76 रुपये 20 पैसे और UAE दिरहम कीमत खरीद 77 रुपये 66 पैसे और कीमत फ़रोख्त 77 रुपये 81 पैसे। आज कराची में 10 ग्राम सोने की कीमत 1,83,559 रुपये रही। रवा माली साल के पहले 4 माह के दौरान मुल्की बरामदात में गुज़श्ता माली साल के इसी अरसे के मुकाबले में 29.96% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। और अब हम चलेंगे फ़न की दुनिया में। दुनिया भर में आज टेलीविज़न का दिन मनाया गया। रवां साल इस दिन का मौजू है रसाई। मुमताज़ शायर अतर नफीस की 43वीं बरसी आज मनाई गई। इस हवाले से मज़ीद तफसील जानते हैं रेडियो पाकिस्तान इस्लामाबाद के नुमाइंदे शहजाद गौरी की इस रिपोर्ट में। उर्दू शायरी में मुनफरिद लबो लहजे और दिलनशीन उसलूब के बाइस एक अलग पहचान बनाने वाले हर दिल अजीज शायर अतर नफीस की आज 43वीं बरसी मनाई जा रही है। उन्होंने उर्दू गजल को ख्याल आफरीन मौज़ूआत के साथ धीमा और नर्म लहजा अता किया। अतर नफीस का असल नाम कंवर अतर अली खान था। वो 1933 में अलीगढ़ में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम मुस्लिम यूनिवर्सिटी स्कूल अलीगढ़ से हासिल की और क़याम पाकिस्तान के बाद कराची से शाया होने वाले एक रोजनामा में मुलाजमत इख्तियार कर ली और रोजगार के साथ साथ शायरी में भी तबाज़माई करते रहे। उनकी शायरी जिंदगी की सच्ची कैफियतों से इबारत है। अतर नफीस का पहला शेरी मजमुआ 1975 में कलाम के उन्वान से मारूफ शायर और अदीब अहमद नदीम कासमी ने लाहौर से शाया किया, जबकि दूसरा मजमुआ कलाम बाउनवान वो सूरत गर कुछ ख्वाबों के अभी तशनाए तबाद है। अतर नफीस 21 नवंबर 1980 को कराची में वफात पा गए। अतर नफीस की लोहे मज़ार पर उनकी शोहरा आफाक गजल का ये शेर आज भी तहरीर है। वो इश्क जो हमसे रूठ गया, अब उसका हाल बताएं क्या। कोई मेहर नहीं कोई कहर नहीं,
फिर सच्चा शेर सुनाए क्या। वो इश्क जो हमसे रूठ गया, अब उसका हाल बताएं क्या। कोई मेहर नहीं, कोई कहर नहीं, फिर सच्चा शेर। फिल्मी अदाकार असलम परवेज़ की 39वीं बरसी आज मनाई गई। मज़ीद तफसील जानते हैं हमारे लाहौर के नुमाइंदे सज्जाद परवेज़ से। 14 नवंबर सन 1984 की बात है कि पाकिस्तानी फिल्मी सनत के दो मायनाज अदाकार इकबाल हसन और असलम परवेज हैदर चौधरी की फिल्म जूरा की अक्सबंदी के बाद फिरोजपुर रोड लाहौर से अपने घरों को वापस जा रहे थे कि उनकी कार का एक वैगन से तसादुम हो गया। इस तसादुम के नतीजे में इकबाल हसन तो जाए हादसा पर ही जाँ बहक हो गए, जबकि असलम परवेज एक हफ्ते तक मौत और जिंदगी की कश्मकश में मुब्तला रहने के बाद 21 नवंबर की सुबह खालिक हकीकी से जा मिले। असलम परवेज ने अपनी फनी जिंदगी में 200 फिल्मों में काम किया था और पाकिस्तान के मकबूल अदाकारों में शुमार होते थे। इनके इंतकाल से फिल्मी सनत एक नाकाबिले तलाफी नुकसान से दोचार हुई। रेडियो न्यूज़ बुलेटिन में अब हम आपको लिए चलेंगे साइंस की दुनिया में। पाकिस्तान की पहली खलाबाज खातून नमीरा सलीम का सफ़र खलाई तहकीक में मुल्क की बढ़ती हुई मौजूदगी की अलामत है, जो कौम के लिए एक बड़ी कामयाबी है। यह बात आज इस्लामाबाद में निगरां वज़ीर इत्तलात और नशरियात मुर्तज़ा सुलंगी ने नमीरा सलीम के हमरा एक मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कही। उन्होंने नौजवानों पर जोर दिया कि वो मुल्क का मुस्बत चेहरा उजागर करने में नमीरा सलीम से रहनुमाई लें। फख्र की बात है कि हमने इनके इस मिशन की हिमायत की और पाकिस्तानी खुश नसीब है कि वो हमारी नुमाइंदगी खला में भी की है, पाकिस्तानी झंडा भी लेकर गई हैं और हमारी जो बच्चियां हैं, लड़कियां हैं, उनके लिए एक मशअल राह है। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए नमीरा सलीम ने खलाई तालीम को खलाई सफारतकारी के तौर पर फ़रोग़ देने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में हुकूमत का ताउन नागुज़ीर है। मुझे बहुत ही बायस फख्र चीज़ है मेरे लिए कि आज भी 17 साल के बाद आई हैव बिकम द फर्स्ट पाकिस्तानी एस्ट्रोनॉट एंड ऑल्सो द फर्स्ट वुमन टू गो टू स्पेस फ्रॉम पाकिस्तान। इस वक्त हमारी जो दुनिया है वो निजी खलाई परवाज की एज में है, जिसकी वजह से मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली कि स्पेस टूरिज्म के थ्रू मैं एक वर्ल्ड सिटीजन के तौर पे स्पेस में गई और पाकिस्तान का झंडा साथ लेके गई। नमीरा सलीम खला में सफ़र करने वाली पहली पाकिस्तानी बन गई और पहली वर्जिन गैलेक्टिक की नई खातून खलाबाज हैं जिन्होंने गुज़श्ता माह की 6 तारीख को वर्जिन गैलेक्टिक पर सफ़र किया। पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन ने आज इस्लामाबाद में गेनोमिक मेडिसिन और अर्थक्वेक इंजीनियरिंग के बारे में एक वर्कशॉप का एहतमाम किया। इस वर्कशॉप से इन शोबों में बड़ी तब्दीली लाने की गरज से आगे बढ़ने की राह हमवार होगी। व्हाट्सएप कंपनी ने फीचर्स मुतारिफ करवाना चाह रहा है जिसमें सारिफीन कन्वर्सेशन और AI चैट बॉट में अपने स्टेटस का मुशाहिदा कर सकेंगे। ये फीचर सारिफीन तजुर्बात को मद्देनज़र रखकर शामिल किए जा रहे हैं। मेटा कंपनी के मालिक ने कहा है कि वो चैट बोर्ड फीचर पर काम कर रहे हैं जिसके ज़रिए तमाम प्लेटफॉर्म पर चैट बोर्ड को शामिल किया जाएगा। और अब मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं माहिर मौसमियात गुलाम मुर्तज़ा से। मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क जबकि बलाई इलाकों में सर्द है और मतला साफ है। आइंदा 24 घंटों के दौरान भी मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क जबकि बलाई इलाकों में सर्द रहेगा। तहम पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में सुबह के औकात में धुंध और स्मोक बढ़ने का इम्कान। आज रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा में लेह में -6, स्कर्दू में -5, गुपिस और कला में -2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। इसी तरह मुल्क के दूसरे शहरों के कम से कम दर्जा में इस्लामाबाद 7, मरी 5, लाहौर 12, कराची 21, पेशावर 7, कोयटा 6, मुजफ्फराबाद 8, गिलगित -1, स्कर्दू -5, श्रीनगर -1, जम्मू 11, लेह -6, पुलवामा -1, अनंतनाग में -1 और शोपियां में कम से कम दर्जा 0 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान भी मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और शुमाली इलाकों में सर्द रहा। और अब आखिर में अहम खबरों का खुलासा एक मरतबा फिर सुन लीजिए। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि पाकिस्तान तमाम वाले खुसूसन हमसाया मुल्कों के साथ दोस्ताना ताल्लुकात का ख़्वाहां है। बहरी फौज के सरबराह ने मंगला में स्ट्राइक कोर की मुश्तरका तरबियती मशक का मुआयना किया और उनकी ऑपरेशनल सलाहियतों और पेशा वराना महारतों की तारीफ की। और वज़ीर इत्तलात ने कहा है कि निगरां हुकूमत मुल्क में आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात के इनेकाद के लिए पुरअज़्म है।
खबरनामा आपने सुना। पैनल इंजीनियर थे नवीद अकरम, सुपरवाइजर शोबे उर्दू अब्दुल बासित तबस्सुम, मुदीर होम डेस्क अतहर रसूल, मुदीर फॉरेन डेस्क माजिद अली महमूद, न्यूज़ प्रोड्यूसर राना गुलाम मुस्तफ़ा, मुदीर आला अब्दुल बासित खान, निगरान आला अमानुल्लाह सिप्रा। पेशकश शोबे खबर रेडियो पाकिस्तान। मजीद खबरों और तज्ज़ियों के लिए आइए हमारी वेबसाइट पर radio.gov.pk और आप रेडियो पाकिस्तान के ऑफिशियल फेसबुक पेज रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ पर खबरनामे की बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिजा कर सकते हैं। इसी के साथ आमिर हाशमी, आसिफा महफूज और हमारी न्यूज़ टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।